Welcome to the Sunday edition of Market Month, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331 4444, 2342-1050 and 2331-0464. I'm Vaibhav Jyotsna Srivastav with my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं और मोबाइल से फोन करने वाले जो श्रोता हैं वो इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 डायल करना न भूलें। आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। जी, बहुत धन्यवाद। चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस। First, the headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Malaysian PM Anwar Ibrahim in Kuala Lumpur. India and Malaysia exchange several MOUs in sectors covering security, semiconductor, health and medicine and education. India-US interim trade agreement fully protects agriculture and farmers' interests, says Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan, and foreign investors pump in over 8,000 crore rupees into the Indian equity markets in the first week of February. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बातचीत की। भारत और मलेशिया ने सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और चिकित्सा तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता खेती और किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा करता है। और विदेशी निवेशकों ने फरवरी के पहले सप्ताह में भारतीय बाजारों में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Starting the show with the headline story, Prime Minister Narendra Modi's two-day visit to Malaysia has placed strong emphasis on deepening economic cooperation, trade, investment and technology partnerships between the two countries. As part of the engagement, PM Modi interacted with CEOs of leading Malaysian companies at the 10th meeting of the India-Malaysia CEOs Forum. PM Modi today held wide-ranging talks with his Malaysian counterpart, Anwar Ibrahim, in Kuala Lumpur, focusing on boosting defence and security ties and enhancing economic and innovation partnership. A range of agreements and documents were exchanged between the two sides, covering cooperation in disaster management, audiovisual co-production, combating and preventing corruption, semiconductor development, health and medicine, institution of scholarships, and agreement between NPCI, International Payments Limited, and PayNet of Malaysia. More from our correspondent. Summarizing the official visit of the PM, Secretary East P. Kumaran said, semiconductors remain a key area of cooperation. He said that the Malaysia-India Digital Council has been formed to advance engagement in the semiconductor ecosystem as well as digital public infrastructure, e-governance, cybersecurity, artificial intelligence, fintech and payment linkages. Exchange of notes on cooperation in the area of semiconductors, health and medicine, security and technical and vocational education. In addition, the MOU between
between Malaysia's Anti-Corruption Commission and India's Central Bureau of Investigation, CBI, on combating and preventing corruption was signed. We also had an MOU on cooperation in the field of disaster management, a memorandum of cooperation between Employees State Insurance Corporation, ESIC, in India and Perkeso in Malaysia on social security, and we also had an agreement on audiovisual cooperation, all of which were exchanged. P. Kumaran said India's design strengths and Malaysia's long experience in manufacturing, assembly, testing and packaging can complement each other. Mr. Kumaran also said that counter-terrorism cooperation between the two countries covers transnational crimes, including human trafficking and violent extremism, and is being addressed through an ongoing national security dialogue mechanism. Prime Minister Modi also met persons of Indian origin and veterans of the Indian National Army. Durgesh Bhadoria for Akashvani News, Kuala Lumpur. Malaysia is India's third largest trading partner within ASEAN, with bilateral trade currently close to $20 billion. The two countries have diversified trade relations covering agricultural products, chemicals, minerals, electrical appliances and machinery. Both sides are also placing increasing focus on emerging technologies. Engagement in semiconductors and digital technology has intensified, with the Malaysia-India Digital Council already operational to advance cooperation across the broader digital ecosystem. The two countries are also exploring deeper cooperation in digital public infrastructure, artificial intelligence, fintech and payment systems. An agreement between NPCI International Payments and Malaysia's PayNet is expected to enable cross-border QR-based payment linkages. Both sides also expressed support for operationalizing local currency settlement mechanisms between the Reserve Bank of India and Bank of Negara Malaysia, with regulatory discussions continuing on the issue. आशुतोष, हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जो हैं वो जुड़ चुके हैं। ये है सहारनपुर से विवेक। विवेक, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मार्केट मिंडा टीम और एक्सपर्ट को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं म्यूचुअल फंड में इक्विटी क्लास में SIP के द्वारा 8 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ, और जो मेरे फंड्स हैं वो इस प्रकार है: पारस्परिक फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया मल्टी कैप। इनमें सर मंथली सिप है 6,000 रुपए की, और एक्सिस शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है डेप्ट का, इसमें भी 6,000 रुपए की सिप है, और एडलवीज मिड कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसमें 2,000 रुपए की मंथली सिप है। क्या मेरा पोर्टफोलियो सिलेक्शन सही है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि सर मेरा जो PPF अकाउंट है वो मैच्योर होने वाला है, और मैं जो उसका अमाउंट है उसको आपके प्रोग्राम के द्वारा सुनकर 3 साल में उसको अमाउंट को इक्विटी क्लास में लगाना चाहता हूँ। क्या मुझे इन्हीं फंड्स में लगाना चाहिए, और मुझे पहले वो अमाउंट लिक्विड फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा? किस प्रकार गाइड करें सर? जी, पहला सवाल आपका, देखिए आपके फंड्स का चुनाव बढ़िया है। अगर आपका अवधि लंबे समय की है, आप लंबे टाइम के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव से ज्यादा घबराहट नहीं है, 8 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप काफी एक निवेश का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, 2020 के मार्केट फॉल को आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, लंबे समय का निवेश है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका फंड चुनाव काफी बढ़िया है, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा उसके लिए। आपने सोच समझकर काफी सूझबूझ से शायद इन फंड्स का चुनाव किया है, तो आप बिल्कुल अपनी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स भी इसमें इन्हीं फंड्स में कर सकते हैं। नए किसी फंड को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि इन फंड्स में शायद आपने एक ही डेट फंड का नाम लिया, मुझे पता नहीं है आपके पोर्टफोलियो में बाकी डेट एलोकेशन क्या है, कुछ एफडीज में पैसा है, कहीं और से कुछ एफडी आपके डेट का कोई एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में कहीं से कंट्रीब्यूट होता है कि नहीं, क्योंकि एक बात मानिए कि जो आपका पीपीएफ का पैसा है जो आप कह रहे हैं कि मैच्योर होने वाला है, देखिए अगर आपके पोर्टफोलियो में डेट और बहुत ज्यादा नहीं है और आप थोड़ा डेट रखना चाहते हैं तो पीपीएफ एक बेहतरीन विकल्प है। खासकर मैच्योरिटी के बाद जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको बिल्कुल टैक्स फ्री मिलता है, टैक्स फ्री गारंटीड। पीपीएफ जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर वो पैसा अब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ चला है तो आप ये मानिए ये लिक्विडिटी भी अब आपके पास पूरी है, क्योंकि पीपीएफ में 15 साल जब आपको लॉक इन करना पड़ता है पैसा, वो एक मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर वो समय ऑलरेडी पार कर चुके हैं तो पीपीएफ को डेट एलोकेशन के लिए आप अब यूज कर सकते हैं। थोड़ा पैसा अगर आप पीपीएफ में रखना चाहते हैं तो इस बात पे जरूर सोचिए। बाकी अब पैसे को आप अगर म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन्हीं फंड हाउसेस के लिक्विड फंड में पैसा डालकर और एसआईपी एसटीपी के माध्यम से इक्विटी फंड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। Our next caller is Yogesh from Delhi. Yogesh, welcome to Market Mantra. Please ask your question. जी नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल ये है कि जी सवाल पूछिए।
Yogesh, I believe Yogesh has some technical issues. We'll be connecting with him again. We have a next caller, Gaurav from Ghaziabad. Gaurav, welcome to Market Month. Please ask your question. थैंक यू सर। जैन सर, सर मैंने सर 5 म्यूचुअल फंड में शिफ्ट चलाई है सर। एक है सर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जिसमें मैं 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ, और एक है मोतीलाल 150 मिड कैप फंड जिसमें मैं 10,000 करता हूँ, और एक है निफ्टी 50 नावी का निफ्टी 50 उसमें भी 30% मैं करता हूँ इंडेक्स फंड, और एक सर आईसीआईसी बैलेंस एडवांटेज फंड 10,000, बंधन स्मॉल कैप 10,000। सो इसके बारे में सर रिव्यूज चाहिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी, अच्छे फंड्स हैं आपके। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में नवी का अच्छा फंड है। ट्रैकिंग एरर एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, बढ़िया फंड है। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज आपने कहा, बंधन स्मॉल कैप, सारे ही बढ़िया फंड है। निफ्टी का 150 मिड कैप फंड आपके पास है, इस पर थोड़ी नजर रखिएगा। मिड कैप्स में मुझे लगता है मेरी पर्सनल राय में एक्टिव फंड्स को आउट परफॉर्म करने का, या अच्छे फंड मैनेजर को मार्केट्स को अच्छे खासे मात्रा में बीट करने की शायद अपॉर्चुनिटी रहती है। तो क्या मिड कैप में इंडेक्स फंड में आपको बने रहना है, इसको आप थोड़ा ट्रैक करिएगा। और अगर आपको लगता है कि फंड कंसिस्टेंटली आपको एक बीइंग एन इंडेक्स फंड अगर आपको उतना सेटिस्फैक्टरी रिटर्न नहीं दे पा रहा है, तो आप एक्टिव फंड की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अभी कोई जल्दी में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। 5 फंड आपके अच्छे हैं, लंबे समय का निवेश है, तो ये पोर्टफोलियो सूटेबल है, आप इनमें बने रह सकते हैं। मुंबई से हमारे साथ विमल जुड़ रहे हैं। विमल जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। पूरी टीम को नमस्कार। नए इन्वेस्टर्स के बारे में तो अक्सर बातें होती रहती। मैं 90 साल का आदमी हूँ जी, और मुझे अब म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करना है, तो किस रेट से विड्रॉ करना चाहिए ताकि ये 50 साल के करीब चल जाए? जी विमल जी, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप पहली बात तो आप अपनी एलोकेशन देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एक उम्र के बाद सीनियर सिटीजन जब आप बन जाते हैं तो आप ज्यादा, आपका झुकाव काफी ज्यादा ओवरली डेट की तरफ हो जाता है। देखिए 50 साल का आप अवधि कह रहे हैं, तो आपके पास एक पहली बात तो है कि एक रीजनेबल मात्रा में इक्विटी एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। मेरे हिसाब से 35-40% आपका पैसा, एक रेगुलर इनकम पोर्टफोलियो आप बनाना चाह रहे हैं, उसमें एक 35-40% पैसा आपका इक्विटी में और बाकी हाई क्वालिटी डेट इन्वेस्टमेंट्स में, भले ही वो म्यूचुअल फंड से आ रही हो, एफडी से आ रही हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से आ रही हो, तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। अपना जो विड्रॉल रेट है एनुअल, कोशिश करिए वो 4 से 6% के बीच में रहे। और अगर आप इस को डिसिप्लिन से फॉलो कर पाते हैं तो मेरा ख्याल में आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा और आप रेगुलर इनकम भी विड्रॉ कर पाएंगे और आपका पैसा इन्फ्लेशन के मुताबिक बढ़ेगा और आपकी रेगुलर इनकम आप थोड़ी थोड़ी करके हर साल बढ़ा भी पाएंगे। क्योंकि देखिए, आप अगर मानिए आज अगर आपका काम 50,000 रुपये महीना विड्रॉ करने से हो जाता है तो 5 साल बाद वो 50,000 रुपये कम पड़ने लगेंगे। तो जरूरी है कि आपका पैसा भी थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन के साथ ग्रो करे, जिससे आज अगर आप 50,000 रुपये महीना विड्रॉ कर रहे हैं तो कल 55,000 कर पाएं और कुछ साल बाद 60,000 कर पाएं। लेकिन आप अपनी जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है उसके 4 से 6% के बीच में विड्रॉल रेट रखिए, लेकिन जरूरी है कि 41% पैसा आपका इक्विटी में जरूर निवेशित रहे। तो मेरा ख्याल ये एक काफी सस्टेनेबल मॉडल रह सकता है। और जयपुर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, जैसे मैंने एनपीएस में खाता खोला हुआ है, कैम्स के थ्रू ऑनलाइन किया हुआ है, तो अक्टूबर से कुछ एनपीएस में कोई चेंजिंग आ गया है शायद हमारे ख्याल से। तो अब हम जब उसमें पेमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक तो पूछता है कि कॉमन, तो जो कॉमन या पेंशन फंड, ठीक है, तो कॉमन तो हमारा था एचडीएफसी, मैंने किया था। पेंशन फंड क्लिक करने पे बहुत सारा जो फंड में हाउस है ना, फंड मैनेजर उनका रहता है, उसमें भी 2-2 करके है, कुबेर, कोटक कुबेर, इक्विटी, ऐसे करके। तो हम लोग कैसे जज करें कि तो क्या जो हमने पहले खोला था क्या वो पेंशन फंड नहीं था, वो भी तो पेंशन ही था? जी, एनपीएस में कुछ नई स्कीम्स को अलाउ किया गया है। एनपीएस एक इवॉल्विंग प्रोडक्ट है, उसमें काफी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं और अच्छी बात है, निवेशकों के लिए चॉइस दी जा रही है। एक बढ़िया निवेश का विकल्प है एनपीएस। मेरी सलाह आपको रहेगी, जो आपने कॉमन स्कीम्स बोला, जो कि ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एनपीएस की स्कीम्स अभी तक चली आ रही हैं, जिनसे आप परिचित हैं, जिनमें आप निवेश करते आ रहे हैं,
मेरी सलाह में आप अभी उनमें कंटिन्यू करिए। ये कुछ नई स्कीम्स आई हैं या अब आने लगेंगी, रेगुलेटरी चेंज हुआ है, नई स्कीम्स को, म्यूचुअल फंड्स के तरह की स्कीम्स को परमिट किया गया है एनपीएस में, लेकिन इन स्कीम्स को लॉन्च होने दीजिए, थोड़ा इनको अपना ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करने दीजिए, जिससे आपको पता चले ये कैसे फंड्स हैं, किस टाइप का रिटर्न दे रहे हैं, किस टाइप का पोर्टफोलियो बनाते हैं, क्या रिस्क इनमें अंडरलाइंग है। तो नई स्कीम्स के लिए जल्दी मत करिए, कॉमन स्कीम्स भी बढ़िया विकल्प हैं, आप उनमें अपना निवेश बनाए रखें, चलने दें, थोड़ा इनको समय दीजिए लॉन्च होने के बाद। और मेरे ख्याल कम से कम 1 साल बाद आप इस पे विचार करिएगा कि क्या जो नई स्कीम्स हैं उनमें उनकी तरफ आपको जाना चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट कॉल इज रत्नाकर फ्रॉम मुंबई। रत्नाकर, वेलकम टू द शो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। रत्नाकर जी, स्वागत है आपका शो में, कृपया अपना सवाल पूछें। रत्नाकर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी रत्नाकर जी, योर वॉइस इज ऑडिबल, प्लीज योर क्वेश्चन सर। हेलो Yes, sir. रत्नाकर जी, अपना सवाल पूछिए। Moving on to our next story, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today rejected the Congress's criticism of the India-US trade deal, saying the agreement fully protects agriculture and farmers' interests, with key farm products kept out. Addressing a press conference in Bhopal, Chauhan said no product harmful to Indian farmers has been included and asserted that national and farmers' interests remain paramount. He accused the Congress, which ruled for years, of failing to link farmers to global markets or ensure economic stability. He said India would not allow genetically modified products and that no tariff concessions were given on a wide range of farm goods, including meat, dairy, grains, oilseeds, fruits, vegetables, spices and processed foods. Mr. Chauhan said the deal safeguards farmers' livelihoods and preserves Indian agriculture, adding that under the Modi government, India is moving rapidly towards becoming the world's third largest economy. The Congress has claimed that the agreement benefits the US and it could turn India into a dumping ground for American goods. Rejecting the charge, Chauhan said the opposition was creating unnecessary fear. और वैभव विमल जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। विमल जी, अपना सवाल पूछिए। जी विमल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार पूरी टीम को। और मैं ये कहता हूँ कि कई बार मेरा एक कॉपस है जो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 50 साल वो चले, तो उसका विड्रॉल रेट क्या होना चाहिए? जी, विड्रॉल रेट 4 से 6% अपने पोर्टफोलियो के रखिएगा, तो मेरा ख्याल ये सस्टेनेबल होगा। ये इसी सवाल पे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा करी थी कि एक रेगुलर इनकम पोर्टफोलियो के लिए 35-40% पैसा इक्विटी में होना जरूरी है, जिससे वो कैपिटल आपकी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड रहे, और 4 से 6% का विड्रॉल रेट एक सेफ रेट मैं मानता हूँ। ओके, फरीदाबाद से हमारे साथ नवीन जुड़ रहे हैं। नवीन जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सर। नवीन जी, आप कृपया अपना सवाल पूछिए। I believe there's some technical glitch. Our next caller is NP Singh, joining in Market Mantra NPG. स्वागत है Market Mantra में, कृपया अपना सवाल पूछें। All the panelists. जी, it's a very simple question. I just want to know that what are the things which drive the upper side, and why suddenly the rates come so down? What are the reasons for the on the rise, and what are the reasons for the down trend? See, it could be a confluence of factors. If I understood your question correctly, you were trying to ask what are the factors for the rise and fall of the markets, if I'm correct. Well, it's a confluence of factors. It's a marketplace. People, all the time, people are buying and selling stocks. And, when there is more optimism in the market, buyers are willing to pay higher prices for whatever they are buying, and that is an overarching collective view that is coming out. Then the markets would tend to rise, or they would also fall if the reverse is the case. But you can say that in the short term markets are governed by sentiments, but in the long term the fundamentals and the inherent strength of the businesses prevail. That is what in the long term determines whether the prices of a particular company will rise or fall. आशुतोष, विभिन्न जिज्ञासाओं की कड़ी में जो अगला सवाल है वो हमारे पास आ रहा है गाजियाबाद से। इनका नाम है जय कुमार। जय जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जय जी, अपना सवाल पूछें। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरे पास
एनपीएस का अकाउंट है और उसमें कुछ फंड है, तो मुझे ये जानना है कि जब मैं गवर्नमेंट बॉन्ड से इक्विटी फंड में इसकी मैं एलोकेट करता हूँ परसेंटेज, तो उसका मुझे कैसे डिटेल्स मिलेगा? क्योंकि मैं पूछ रहा था कस्टमर केयर से, तो वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बस ये बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन 4 दिन में होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट बॉन्ड की एनएवी है और इक्विटी की जो एनएवी है वो सेम डे की कैसे वेरीफाई करें कि वो सही ट्रांजेक्शन हुआ है? धन्यवाद जी। अगर आपको अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन डिटेल आप देखना चाहते हैं अपनी एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स की, तो आप डिपेंडिंग अपॉन किस केआरए पे आपका एनपीएस अकाउंट खुला है, या तो प्रोटीएन पे होगा या केफिनटेक पे होगा। मेरे ख्याल 4 एनपीएस के केआरएज हैं। आपको उनकी वेबसाइट पर जाकर आपको एक परमानेंट रिटायर अकाउंट नंबर, प्रैन नंबर जिसे कहते हैं, आपको वो एलोकेट हुआ होगा। आप वो नंबर डालकर अपना एक लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड आप अपना सेट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करिएगा, हाँ, आपको जाना उसी केआरए की वेबसाइट पे होगा जहां पर आपका खाता खुला है। तो आप उस पे लॉगिन करिए, वहां पे आपको आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स मिलेंगी। फाइनेंशियल ईयर वाइज आप अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, एक एक इन्वेस्टमेंट किस दिन कितना पैसा निवेशित हुआ, किस एनएवी पे हुआ, सारी डिटेल आपको वहां मिल जाएंगी। फरीदाबाद से हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ रहे हैं। पहले हैं नवीन। नवीन जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन मार्केट मंत्र में। कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। ये एक फंड से दूसरे फंड में स्विच आउट करना है, तो कितना इसमें टाइम लगना चाहिए? मतलब देखिए, ये आपके एक निवेशक के हाथ में आता है कि अगर आप एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करना चाहते हैं, तो आप क्या एक मुश्त में लमसम में ये शिफ्ट करना चाहते हैं, वो भी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। और अगर आप इसको मासिक किश्तें बनाकर मंथली एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू आप स्विच करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। अलग अलग फंड में मिनिमम अमाउंट या मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जिस पे आप कर सकते हैं, ये अलग अलग फंड में अलग अलग हो सकता है। बट टिपिकली आप मान के चलिए कि या तो आप लमसम में कर सकते हैं, या 6 महीने का आप एसटीपी क्रिएट कर सकते हैं एक फंड से दूसरे में, और उसके ऊपर आप जितने महीने में आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो ये कोई, इसके लिए आप कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टर के पास होती है। मुंबई से हमें एक कॉल आई थी जिसका जो कांटेक्ट है वो बीच में रुक गया था। रत्नाकर जी हैं। रत्नाकर जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि मेरे पास वो आदित्य बिरला का बाल भविष्य करके एक म्यूचुअल फंड है, वो था। अभी मैंने वो 2019 में लिया था। अभी हम उससे निकाल सकते हैं क्या? क्या उससे अमाउंट निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि अभी वो मैक्सिमम तक पहुंच गए हैं। दूसरा एक सवाल है कि बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड और डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, उसका भी जितना चाहिए उतना नहीं बढ़ गया है, तो उसमें क्या करेंगे? और तीसरा सवाल है कि इन्वेस्ट को इंडिया का जितना चाहिए बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है, तो उसके बारे में ही हमें सलाह दीजिए। थैंक यू। देखिए, पहला सवाल आपका एबीएसएल आदित्य बिरला सन लाइफ बाल भविष्य को लेकर, जहां तक मेरी जानकारी है, ये क्योंकि एक स्पेशल टाइप के ये चाइल्ड सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्लान है। थोड़े थोड़े रूल हर फंड के अलग हो सकते हैं, बट मोटा मोटा इनमें ये होता है कि 5 साल तक का इनमें लॉक इन रहता है, और उसके बाद आप निकालते हैं। मेनली ये जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता है तब तक की इन्वेस्टमेंट इनमें होती है, लेकिन आप पहले पैसा निकालते हैं तो इनमें कुछ आपको एग्जिट लोड ज्यादा लगता है। इस फंड पे कितना स्पेसिफिक एग्जिट लोड आपको लगेगा, 5 साल तक तो शायद आप निकाल ही नहीं सकते। उसके बाद अगर आप निकालते हैं तो आपको कुछ एग्जिट लोड का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो ये डिटेल थोड़ी आपको फंड के स्कीम मास्टर में मिलेंगी, उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू अपना डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा, आपने 2 ईएलएसएस फंड आपके पास हैं। मेरे हिसाब से आप उनमें थोड़ा ठहरिए। आप बैंक ऑफ इंडिया का आपने ईएलएसएस फंड बोला, थोड़ा निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन पिछले 1 साल को अगर हम देखें तो ये फंड अबव एवरेज परफॉर्मेंस देने में सक्षम हुआ है। लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड अभी भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन पिछले 1 साल का थोड़ा रिवर्सल देखते हुए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा इस फंड में रुक सकते हैं।
और इन्वेस्को का भी शायद आपने फंड का नाम नहीं बताया स्पेसिफिक कौन सा फंड है, लेकिन आप जनरली इन्वेस्को के इक्विटी फंड्स अच्छे हैं, फंड मैनेजर्स अच्छे हैं, एक अच्छा इक्विटी फ्रेंचाइज है इन्वेस्को के पास, तो थोड़ा मेरे ख्याल आप उसमें भी धैर्य बनाए रख सकते हैं। 3 महीने की लगातार बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों ने फरवरी के पहले सप्ताह में खरीदारी शुरू कर दी और भारतीय शेयर बाजारों में 8,100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। डिपोजिटरी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में 35,962 करोड़ रुपए, दिसंबर में 22,611 करोड़ रुपए और नवंबर में 3,765 करोड़ रुपए की लगातार निकासी के बाद ये भारी निवेश हुआ है। After rising for the second straight week, domestic investors are likely to focus on several important domestic and global triggers, including inflation data, India-US trade deal announcements for Qs next week. Last week, the Sensex surged 1,311 points, or 1.6%, to close at 83,580, while the Nifty gained 373 points, or 1.5%, to settle at 25,694. In India, investors will closely track retail inflation data due on February the 12th. Will be updated base year, followed by WPI inflation and foreign exchange reserves data on February the 13th. Further details regarding the India-US interim trade deal framework will also remain in focus. Globally, investors will also closely monitor geopolitical developments, particularly the ongoing negotiations between the US and Iran. सरकार ने आयकर नियमों और प्रपत्रों 2026 के मसौदे पर जनता और हितधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं। ये इस महीने की 22 तारीख से आयकर कार्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर भेजी जा सकती हैं। आयकर कार्यालय ने सूचित किया है कि ये मसौदा नियम सार्वजनिक डोमेन पर भी उपलब्ध हैं। इसका उद्देश्य सहभागिता और पारदर्शिता को बढ़ाना तथा प्रभावी नियम निर्माण प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। And Ashutosh Ji, this show has always been about investor education. What are the things that one should keep in mind while investing in mutual funds, especially during times of uncertainties like we've seen since August, September 2024, and they are still continuing? What is your approach? Yes, so the most important thing while considering investing in mutual funds is to consider the suitability, because a brilliant fund may be the worst fund for you given your investing need, your time horizon, your risk appetite. So the best small cap fund may turn out to be the worst investment for you if you're investing only for 6 months or 1 year. So first thing is to identify what are you investing for, what are your goals, what is the investing need, and then pick out a suitable kind of category. That's one. When you are looking at the funds, don't get too carried away by the promise. Look at the long-term track record of a fund. Don't get carried away by the performance in the last 1 year or 6 months, but look at the stability and the consistency that the fund offers over a period of time. And once you do these things, I think most of the other things taken care of by themselves, because mutual fund is supposed to be a very hands-off an easy investment decision. It's a product meant for average retail investors who are not very familiar with the nuances of the markets. So keep that in mind, and if you're investing in equities, always ensure to spread your investment and not invest in one go. Absolutely. किसी का एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए? एग्जिट प्लान भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप इक्विटी से एग्जिट कर रहे हैं तो उसको जिस तरह आप ग्रेजुअली मार्केट में एंटर करते हैं एसआईपी के थ्रू, बहुत जरूरी है कि आप ग्रेजुअली एग्जिट करें, क्योंकि मार्केट एंड टाइम पे कभी भी सरप्राइज दे सकती है आपको। तो आप उस सरप्राइज से प्रोन ना हो, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। कोई बड़ा गोल है, कम से कम 1-1.5 साल पहले से मंथली बेसिस पे ही एग्जिट करना शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब देने के लिए। बहुत धन्यवाद। And before we close, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Malaysian PM Anwar Ibrahim in Kuala Lumpur. India and Malaysia exchanged several MOUs in sectors covering security, semiconductor, health and medicine and education. India-US interim trade agreement fully protects agriculture and farmers' interests, says Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan. And foreign investors pumping over 8,000 crore rupees into the Indian equity markets in the first week of February. And that's it in this edition of Market Mantra. नमस्कार। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।